यूजीसी नेट कर लो, लाइफ सेट है. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हर्ड दिस लाइन? ऑफ कोर्स, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू कम इनटू द फील्ड ऑफ एकेडमिया, आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को ये बोलते हुए कि बस नेट कर लेना, सॉर्ट हो जाएगा, नो नीड टू वरी. बट today I'm going to tell you about that. Is this exam overhyped? Because मुझे किसी ने तो कहा था कि this is overhyped. So let's keep it real. I'm not here to demotivate you, nor I want to glorify anything. ठीक है, let me be very clear. ना मैं demotivate करना चाहती हूँ, nor I'll try कि मैं glorify भी कोई चीज़ ना करूँ, ठीक है? So we'll get into it कि actually net के बाद क्या होता है? Is it overhyped? Is it worth it or not? Is something which we will cover in this video. So yeah, let's start. So the fact is that yes, UGC NET makes you eligible to become an assistant professor in India. ठीक है, it is an eligibility criteria. तो अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एक गेटवे ओपन हो जाता है. Now द एक्सपेक्टेशन जो उसके साथ है कि नेट होते ही आपकी जॉब लग जाएगी इज समथिंग वेरी रॉन्ग. बिकॉज लोगों को ये लग रहा होता है कि ये सब. रिसेंटली आई वाज रीडिंग समवन्स कमेंट, ने कहा कि ये मेरा नेट हो चुका है तो मेरा जॉब कब तक प्लेस हो पाएगा. सो बेसिकली इट्स जस्ट एन गेट, मतलब गेट वे. ठीक है, उसके बाद जाके आपको ही चीजें करनी है. उसके बाद देयर इज इंटरव्यूज, देयर अगेन सम यूनिवर्सिटीज कंडक्ट देयर ओन एग्जाम. ओके, सो इट मेक्स यू एलिजिबल बट इट डजंट गारंटी जॉब. नाउ समवेयर लोगों ने बहुत सारी चीजें ग्लोरीफाई कर दी हैं ऐसे कि यस नेट करके मतलब ये हो जाएगा. देयर इज ऑल्सो दिस मार्केटिंग टेक्निक्स जहाँ पे सारी चीजें यूज करी जा रही है. बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी अवेयर कि इससे क्या हो रहा है. सो नेट इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट इफ यू आर समवन हु इज वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स रिसर्च और फॉर टीचिंग. देन डेफिनेटली नेट इज समथिंग विच यू मस्ट गो फॉर. ठीक है, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ importance, प्रायोरिटीज आपको मिलेंगी और in the long run as well, it will help you in a lot of ways. Okay, so before I continue, if you're someone who is planning to give your UGC NET exam in 2026, then I have something to show you. So I have these 3 books by Oswald Books, and इनकी books ने actually they have helped me. इनकी PYQs were so good that they helped me to qualify my UGC NET exam in 2022 back then. तब से लेके अभी तक this is something which has been my constant. They have 3 books which is 20 previous year solved papers, then they have 15 mock test papers, and then they have chapter wise and topic wise solved papers. And this is definitely going to be a very, very big help for you. So first they have 20 previous year solved papers. This has latest syllabus and has mind maps as well. There you will get all the questions asked in the PYQs and with a solution which is very detailed, and answer key is also provided. This is a must. Next we have 15 mock test papers. This has mock test papers with good questions that have been asked in the papers as well with detailed explanations. And this is latest as per syllabus. Next we have chapter wise and topic wise book, which again has a lot of content which is related, up to dated, and you will get a strategy notes as well. Mind maps also provided. Here we have detailed explanation of each chapter with concepts, questions, and their answer keys are also provided. Now, these 3 books are a must have. So, if you're someone who is preparing for UGC NET exam, these are the books which you can definitely refer. These were a great help for me, and I hope that this will be a great help for you too. So, मैं इसका link description में mention कर दूंगी. Make sure to check it out. So coming back to the video, as I was saying that yes, net holds a very, very important thing. But there are now places कि जहाँ पे नेट के साथ people are also prioritizing PhD because we already have so many PhD aspirants, जैसे मैं पहले अपनी वीडियोस में बोलती आई हूँ. मेरे टाइम पे yes, I got my job when I was 22 years old and I became an assistant professor because I had net. ठीक है, again in my subject PhD अब जाके इट्स वेरी कॉमन, बट पहले इतनी नहीं होती थी बिकॉज आई कम फ्रॉम मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एंड यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं. सो नाउ दैट आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड PhD बिकॉज मुझे पता था कि अब मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है PhD के. नाउ इट इज मैंडेटरी, आपको करना ही पड़ेगा इफ यू आर समवन हु इज प्लानिंग टू स्टे इन दिस फील्ड. सो आई न्यू कि ठीक है, मतलब ये तो करना पड़ेगा. बट ऑफकोर्स qualifying UGC NET opened a gateway for me. It made me eligible. I could give the interviews, and if I'm someone who is able to convince the the team or whoever is interviewing me कि मतलब I am a good teacher, I can be a good professor, then again that was a win-win situation for me. So NET is something, it is the मतलब आप बस अब ये कर लो, उसके बाद there are other levels. But अगर ये नहीं करोगे then again you can face difficulties. Though there again there are some people जो ऐसा कहते हैं कि PhD के बिना कहीं भी कुछ नहीं होता है.
येस, अब जाके पीएचडी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ मिलने लगी हैं, मिलनी भी चाहिए आई गेस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने 5-6 साल पीएचडी को दे के आ रहे हैं, उनको ऑफ कोर्स जॉब मार्केट में जगह मिलनी चाहिए। बट अभी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पे नेट इज़ मैंडेटरी, पीएचडी के बारे में नहीं लिखा होता है। ओके, so it's better to play safe and to qualify this exam. Even if you are planning for PhD, make sure कि आप नेट के बिना ना चीज़ें सोचें। Now, first of all, of course, नेट का एग्जाम जो है वो आपको एलिजिबल बनाता है to be an assistant professor. Second, it opens a path for you to have an enrollment in any of the PhD program, ठीक है, और in your subject, जिस भी सब्जेक्ट में कर रहा है PhD के लिए आपके लिए easy हो जाएगा. Third, it gives you JRF. अगर आप अच्छा कर लेते हैं, then again you will get a fellowship from the government, which is a very good and decent fellowship which can literally help you, you know, in your research, in your daily lifestyle and thing. तो आपको 3 चीज़ें मिल जाती हैं. So net is important. You must. जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि नेट ना करके they do things, बहुत टफ है. Now I have seen a lot of aspirants जो ये सोचते हैं कि मतलब अगर उनके पास नेट भी नहीं है, PhD भी नहीं है, तो क्या जॉब लग सकती है? मे बी लग जाए. ओके, मे बी, बिकॉज आई हैव सीन पीपल की जहाँ पे लग जाती है, बट अगेन द चांसेस आर वेरी वेरी लो. ओके, सो प्लीज डोंट सेट दैट हाई एक्सपेक्टेशन या जो भी है, मतलब फॉल्स एक्सपेक्टेशन कि आपका हो ही जाएगा, नेट कर लिया है तो सब चीज़ें ईजी हो चुकी हैं. नेट और JRF हर साल में 2 बार एग्जाम हो रहा है, हजारों नंबर्स में नेट और JRF निकल रहे हैं. ओके, सबको जॉब मिल रही है क्या? हमारे पास इतनी वैकेंसीज हैं? आई बीन वेरी क्लियर विद द फैक्ट कि वी डोंट हैव इनफ वैकेंसीज. एक सीट के लिए यू नो 100, 200, 500 इतनी तक की लड़ाई है. सो गवर्नमेंट में दे आर रियली एनी वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, ठीक है, बहुत साल बाद आ रही है. प्राइवेट में भी अगेन पूल भरता जा रहा है बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इज ऑल्सो देयर. तो अभी जो इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं दे कैन ऑल्सो कम एंड टीच. सो बहुत सारी जगह पे जो ट्रेंड्स हैं, जो ट्रेडिशनल पाथ्स हैं, वो चेंज होते जा रहे हैं, एंड विद दैट यू हैव टू चेंज एज वेल. ठीक है, सो प्लीज बी अवेयर. बाकी इट इज नॉट ओवर हाइप, इट इज ओवर हाइप ओनली अगर आप ये सुन रहे हैं कि ठीक है ये कर लोगे तो हो जाएगा. इफ यू आर वेल अवेयर कि नेट के बाद क्या क्या होता है, देन इट इज नॉट ओवर हाइप एक्चुअली. एंड समवेयर टू बी ऑनेस्ट आई डू बिलीव कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट कर ली, उन लोगों ने एक बहुत बड़ी हाइप बना दी है. नेट इज इंपॉर्टेंट, इट इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसको करके बस लाइफ सॉर्ट नहीं होती है. लेट मी बी वेरी क्लियर. सो प्लीज बी अवेयर कि आपको ऐसा ना लगे कि बस ये कर लिया है तो दैट्स इट, सब चीज़ें हो जाएंगी. इट्स दैट ईजी, इट्स नॉट दैट ईजी. आजकल जॉब मार्केट की हालत इतनी अच्छी नहीं है. यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट. एंड इफ यू आर समवन हु इज रियली रियली इनटू रिसर्च, हु इज रियली रियली into teaching, and someone who can wait, someone who can have this dedication कि नहीं मैं करती रहूँगी, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती रहूँगी, I'll try this, I'll try that, research papers छापना, नए नए कोर्सेज सीखते रहना, because teaching is a constant learning process. From the time that I am into this job, from the time that I have become assistant professor, I know I have this constant pressure कि मुझे नया नया कुछ सीखना है, either to teach students or either to upgrade myself. Okay, from subject area to a lot of things. मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उस चीज़ का भी. सो इट इज़ समथिंग वेरी वेरी नॉर्मल फॉर अस. सो इसीलिए आपके पास वो ज़ीन होनी चाहिए. डोंट डू इट बिकॉज आपको लगता है कि बस मतलब कर लोगे और आपको इंपॉर्टेंस मिल जाएगी. डोंट डू इट फॉर दैट रीज़न. ठीक है, तब आपको लगेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई, तो इसलिए नहीं. इसलिए टीचिंग में अगर रिसर्च में जेन्युइनली इंटरेस्ट है तभी जाके नेट का एग्जाम दो, उसे क्वालिफाई करो या PhD करो, बिकॉज ओनली देन इट्स वर्थ इट, अदरवाइज इट इज़ नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी. सो अगर टीचिंग में जेन्युइनली इंटरेस्ट है, PhD में इंटरेस्ट है, रिसर्च में है, कुछ मतलब एक्चुअली कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, कुछ एक्चुअली सीखना चाहते हो, ठीक है, तो प्लीज नेट का एग्जाम दो, उसे क्वालिफाई करो. इट्स नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट. आई हैव ऑलवेज सेड आई हैव क्वालिफाइड नेट एग्जाम थ्राइस with 6 months of good dedication, ठीक है, and a good timetable, you can easily qualify this exam. All you have to do is you have to understand some basic facts, know the pattern, be aware कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, what's important, what's not important. So with that strategy, you can definitely qualify this exam. So yeah, that's for today's video. I hope this was very very helpful to you. And if it was, please drop down comments. And if you have any query, आप comment कर सकते हैं. I will make sure that I reply to you. Bye bye and take care. And yeah, I'll see you in my next video. Bye.